لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ولقد حدثني أبي عليه السلام أنه لم يخل مكان منذ قتل من مصلي يصلي عليه من الملائكة أو من الجن أو من الإنس أو من الوحش، وما من شيء إلا وهو يعبط ظاهره ومصابه ويرجو في نظر إله الخير النظر إلى قبره. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین علیہ السلام کا چینل جو براہ راست کربلا سے نشر کیا جا رہا ہے، آج اس اردو کے پروگرام میں کچھ دیر آپ کی سماع خراشی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اربعین کا موقع ہے. پوری دنیا سے عاشقان امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہو رہے ہیں، اور تمام مقامات مقدسہ، نجف اشرف، کاظمین، سامرہ، یہ تمام کی تمام جگہ وہ ہیں جہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ماشاءاللہ پوری دنیا سے ہر قوم، ہر فرقے، ہر مسلک، ہر زبان کے لوگ جو ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کی جانب عازم ہیں. اور یقیناً جس محبت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس مقصد کے لیے وہ کربلا آ رہے ہیں، یقیناً ان کی عقیدت، ان کی محبتیں اس میں وہ کامیاب ہیں، کامران ہیں. اس لیے کہ یہ معمولی زیارت نہیں ہے. اس زیارت کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبیٰ اور بقیہ ہمارے تمام ائمہ نے سخت تاکید کی ہے. جس حدیث شریف کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ارشاد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے وہ جگہ نمازیوں سے کبھی خالی نہیں رہی ہے. یا تو فرشتے یا جن یا انسان یا درندے مقدس مقام پر عبادت اور نماز میں مصروف ہیں. ہر چیز امام کے ظاہروں پر رشک کرتی ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو ظاہر سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھ کر وہ اچھائی کی امید کرتا ہے. اس لیے کہ ظاہر نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے. اپنے کو قبر امام حسین علیہ السلام سے مس کیا ہے. یہ روایات ہم آپ کی خدمت میں کامل الزیارات جلد نمبر 1 صفحہ 324 سے پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی سفارش کرو، کیونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں رزق پنہا ہے، رزق کی زیادتی کا باعث، طولانی عمر کا سبب اور بلاؤں کے دور ہونے کا باعث ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر اس مومن پر واجب ہے جس کا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی جانب سے امام ہے. بحر الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 3. محمد ابن مسلم سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں کو زیارت قبر حسین کی طرف حکم دو، کیونکہ آپ کی زیارت ہر اس مومن پر واجب ہے جو خدا کی طرف سے آپ کی امامت کا اقرار کرتا ہے.
इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशनुदी खुदा के लिए और फ़ी सबीलिल्लाह ज़ियारत करे तो खुदावंद आलम उसको आतिश जहन्नम से निजात अता करेगा और क़यामत के दिन उसको अमान देगा। खुदावंद आलम इस दुनिया और आखिरत की कोई हाजत तलब नहीं करेगा मगर ये कि खुदावंद आलम उसकी हाजत पूरी करेगा। फिर एक और हदीस में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए न जाए यहाँ तक कि मर जाए तो ऐसा शख्स दीन व ईमान के लिहाज से नाक़िस है, और अगर जन्नत में दाखिल हो भी जाए तो उसका दर्जा तमाम अहले ईमान से कम है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत करे उस शख्स के मानिद है जिसने फ़राज़ अर्श पर खुदा से की ज़ियारत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और अज़मत अबुल हसन जमालुद्दीन अली इब्न अब्दुल अज़ीज़ मौसूली हिल्ली बुज़ुर्ग अदीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मद्दाह मुमताज़ शायर और एक फ़ादिल इंसान थे, जो शहर हिल्ला में ज़िंदगी बसर किया करते थे। उनका इंतकाल 750 हिजरी में शहर हिल्ला में हुआ और आपका मज़ार शहर हिल्ला की मशहूर व मारूफ ज़ियारतगाह है। मौसूफ जैसा कि क़ाज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी ने किताबुल मजालिस में और ज़मरदी ने किताब रियाज़ुल जन्ना में बयान किया है, नासबी माँ बाप से पैदा हुए, उनकी वालिदा ने नज़र की थी क्या उनके यहाँ लड़का पैदा हो तो उसको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरों की डाका ज़नी और गारत गरी के लिए तरबियत करूँगी ताकि ज़ायरों को गारत करे और उनको कत्ल कर दे। जब मौसूफ की पैदाइश हुई और उन फ़ुआन शबाब में कदम रखा तो अपनी नज़र पूरी करने के लिए ज़ायरों के रास्ते पर भेजा। वो जब करबला के नज़दीक मुसैयब के इलाके में पहुँचे तो एक जगह उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि ज़ायरों का एक काफ़िला रास्ते से गुज़र रहा है और ज़ायरों के काफ़िले की गर्द व गुबार उसके चेहरे पर आ रही है। इसी मौके पर उसने ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो गई है। हुक्म हुआ इसको दोज़ख में डाल दो, लेकिन उस पाक गर्द व गुबार की वजह से आग उसके चेहरे तक नहीं पहुंच रही है। इसी मौके पर उसकी आँख खुल गई, दरहाले के वो बुरी नीयत से घबराए हुए थे। उसके बाद से मौसूफ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत के शहदाई बन गए और एक तूलानी मुद्दत तक करबला में मुकीम और हायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मुकीम रहे। उस वक्त से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मदह सराई में मशगूल रहे और एक नूरानी रुबाई के ज़रिए अपनी मदह सराई का आगाज़ किया। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करामत व मेहरबानी का एक अजीब वाक़या बयान करते हैं कि मैंने शिया उलमा की तालीफ़ात में देखा कि सुलेमान आमश कहते हैं कि मैं कूफे में रहता था, मेरा एक पड़ोसी था, मैं उसके पास आमद रफ्त और नशिस्त व बर्खास्त किया करता था। एक शब जुमा उसके पास गया, उससे कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सिलसिले में तुम्हारा क्या नज़रिया है। उसने कहा बिदअत और शरई क़वानीन के ख़िलाफ़ है और ये बिदअत गुमराही है और जो शख्स भी गुमराही और ज़लालत में मुब्तला हो वो दोज़खी है। सुलेमान ने कहा हालांकि मेरा पूरा वजूद गुस्से से भर चुका था। उसके पास से उठा और अपने दिल में कहा कि सहर के वक्त उसके पास जाऊंगा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करूंगा। अगर अपनी दुश्मनी और जाहिलाना ताअस्सुब पर इसरार और हठ धर्मी की तो उसको कत्ल कर दूंगा। चुनांचे जब शहर का वक्त हुआ तो मैं उसके पास जाने के लिए रवाना हुआ और उसके घर पर दक़्क़ुल बाब किया और उसका नाम लेकर आवाज़ दी। अचानक उसकी बीवी ने मुझसे बयान किया वो रात के पहले हिस्से में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला गया है। चुनांचे मैं भी उसके पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए रवाना हो गया। जब मैं रोज़े में वारिद हुआ तो मैंने उस पड़ोसी को देखा जो सजदे के आलम में
खुदा से रो रो कर मुनाजात और तौबा की दरख्वास्त कर रहा है। एक तुलानी मुद्दत के बाद उसने सजदे से सर उठाया। उसने मुझे अपने पास खड़ा हुआ देखा। मैंने उससे कहा, तुम कल रात कह रहे थे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बिदअत व गुमराही है और हर गुमराह आतिश जहन्नम में है, लेकिन आज तुम कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर आ गए और ज़ियारत कर रहे हो? उसने कहा, ए सुलेमान, मुझे मलामत न करो, मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की वलायत व इमामत का कायल नहीं था। यहाँ तक कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा जिसकी वजह से मैं अजीब हैरत में पड़ गया और खौफ व वहशत में मुब्तला हो गया। मैंने उससे कहा, तुमने क्या ख्वाब देखा? उसने कहा, एक बुलंद मर्तबा बाज़मत इंसान को देखा जो उसका कद दरमियानी था, ज़्यादा बुलंद न था न पस्त था। उसके जमाल व हैबत और अर्दिश व कमाल की तौसीफ़ बयान करने से आजिज़ हूँ। उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग थे, तेज़ी के साथ रवाना थे। उनके आगे आगे एक सवार था कि जिनके सर पर एक ताज था। उस ताज के 4 रुकने, हर रुकन पर एक गौहर लगा हुआ था जिसको तीनों सिमतें चमक रही थी। मैंने उन बुजुर्गों को खादिमों से दरियाफ़्त किया, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने सवाल किया, दूसरे कौन है? उनका कि अली मुर्तज़ा जानशीन रसूल। उसके बाद मैंने कहा, इस नूरानी फ़िज़ा पर नज़र डाली कि अचानक एक नूर का नाका देखा जिस पर नूर का कजावा था। उसमें 2 ख़वातीन बैठी हुई थी। वो नाका आसमान और ज़मीन के दरमियान परवाज़ कर रहा था। मैंने कहा, नाका किसका है? उनका ये जनाब खतीजुल कुबरा और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। मैंने कहा, ये जवान कौन है? उन्होंने कहा कि ये हसन इब्न अली है। मैंने कहा, ये काफ़िला कहाँ जा रहा है? उन सब ने कहा कि ये काफ़िला मक़तूल जफ़ा शहीद करबला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहा है। चुनांचे मैं उस नाक़े की तरफ गया जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ रखती थी कि अचानक मैंने एक लिखा हुआ नामा देखा कि आसमान की तरफ से आ रहा है। मैंने सवाल किया, नामा कैसा है? उन्होंने कहा, वो नामा है शब जुमा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने वालों के लिए आतिश जहन्नम से आग अमान लिखी हुई है। मैंने उस अमान नामे की दरख्वास्त की। मुझसे कहा, मगर तुम ये नहीं कहते कि ज़ियारत हुसैन बिदअत है? यह अमान नामा तुमको नहीं मिल सकता, मगर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो और उनके फ़ज़लो शरफ़ पर अक़ीदा रखो। ख़ुद वहशत के आलम में ख्वाब से चौंका और उसी वक्त अपने मौला व आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र ज़ियारत के लिए इरादा किया और अब खुदा की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ। खुदा की कसम, ऐ सुलेमान, इनकी कब्र से जुदा नहीं होगा यहाँ तक कि मेरी रूह मेरे बदन से परवाज़ कर जाए। हाज अली बगदादी मफ़ातिहुल जिनान में मुहद्दिस क़ुम्मी के नक़ल की बिना पर हज़रत इमाम ज़माना अजल्लहु फ़रहु शरीफ की मुलाकात के वक्त इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या आमश का वाक़या सही है? तो इमाम ज़माना ने फरमाया, हाँ, और ये वाक़या कामिलुज़ ज़ियारात में सफ़ा 121, जामिउल अख़बार सफ़ा 23, फ़सल नंबर 11, बहरुल अनवार जिल्द 98, सफ़ा 3, बाब हदीस 8 में लिखा हुआ है। सामीन किराम, ये चंद हदीसें थीं जिनसे हमने इस्तिफ़ादा किया और ये हदीसें आपकी खिदमत में पेश की। वाक़यात और रिवायात भी नक़ल किए हैं। आप भी जो हज़रात अभी तक जिनको तौफ़ीक़ नहीं हुई वो इरादा करें। ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आइज़ा व अक़ारिब, अपने ख़ानवादे को, पूरे ख़ानवादे को, जिसमें 32 बरस का भाई अल अब्बास जैसा भाई मौजूद, बावफ़ा भाई मौजूद हो और उनके 3 मज़ीद भाई, उसके अलावा जनाब अली अकबर जैसा शहज़ादा जो हम शक्ल पैगंबर भी था, रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, किरदार में मुशाबह रिसालत मआब था, जो अल्लाह की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बतौर इनाम अता हुआ था। उसके बाद जनाब अली असग़र जो 6 माह के हैं। इन बनी हाशिम के अलावा जो असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके लिए ख़ुद इमाम फरमाते हैं, ऐसे असहाब न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले, न मेरे नाना को मिले। वो जलीलुल क़द्र असहाब जिन्होंने अपनी जानों का नजराना इमाम आली मकाम के ऊपर क़ुरबान कर दिया।
उन सब की क़ुबूर, उन सब के मज़ारात इसी हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में है। क्या शान है। मिलियंस अफराद इस वक्त करबला पहुंच चुके हैं। मिलियंस अफराद इस वक्त मशी कर रहे हैं करबला पहुंचने के लिए। एक एक कदम के ऊपर, ज़ाहिर के एक एक कदम के ऊपर रिवायत है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज मकबूल करने का जो सवाब है, वो सवाब एक एक कदम पर ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता होता है। मोमिनीन किराम, मैं इस वक्त आपसे मुखातब हूँ सरज़मीन करबला से, हरम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने से, इमाम हुसैन चैनल के ऊपर, और मेरे बराबर से काफ़लों पे काफ़ले ज़ियारत के, जुलूस के, अमारियों के गुज़र रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ, रोना भी आ रहा है। किस अक़ीदत के साथ, किस इश्क के साथ जवान क्या, बूढ़े क्या, मर्द क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, माजूर व्हील चेयर के ऊपर बैसाखी लगाए हुए, ज़मीन से खिसकते हुए, ये सब के सब क़ब्र सैयदुल शुहदा की ज़ियारत के लिए और बक़िया आइम्मा की ज़ियारत के लिए, शुहदाए करबला की ज़ियारत के लिए करबला में आ रहे हैं। हम यहाँ के ऊपर, ये हकीकत ये है कि आप जिस इश्क और मोहब्बत से यहाँ आ रहे हैं, यही रास्ता वो है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आपको पहुँचाता है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर जब होगा, तो जो जंगे बद्र के असहाब की तादाद थी, वही तादाद आपके असहाब की होगी। जो पहली रवायत है, 313 असहाब होंगे जो इमाम के साथ होंगे। यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम भी मशी फरमाते होंगे, इमाम भी ज़ियारत के लिए आते हैं, हर शब जुमा में ज़ियारत आते हैं। रिवायात में मिलता है कि ज़ाहिर है हमने इमाम को नहीं देखा, मगर जब आपका ज़ुहूर होगा, जब आपके ज़ियारत से शरफ़ हासिल करेंगे, तो उस वक्त कहेंगे, अरे हमने तो करबला में देखा, हमने तो मशी के वक्त देखा, हमने तो हरम इमाम अली में देखा, हमने तो रोज़ा रसूल में देखा, हमने तो खाना काबा में हजर अस्वद के पास देखा। उस वक्त दीदार होगा और उस वक्त पता चलेगा। ज़ाहिर है कि इमाम से मुताल्लिक़ जो रिवायात हैं, आज अदल व इंसाफ दुनिया से ख़त्म हो गया। जुल्म व बर्बरियत का ज़माना है, इंसान के खून का प्यासा है। आज अदालतें ख़त्म हो चुकी, इंसाफ ख़त्म हो चुका, अमानतें ख़त्म कर दी गई। आज हर तरफ एक हू का आलम है। कौन सा मुल्क वो है जहाँ के ऊपर सुकून मिले। रिवायात मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब मेरा फ़र्जंद आएगा, तो उस वक्त हकीकी अमन व अमान कायम होगा, इंसाफ़ व अदल कायम होगा। उस वक्त कोई ना इंसान पर जुल्म करेगा, न जानवर पर जुल्म करेगा। इंसान और जानवर सब के सब वो जानवर कि जो खूंखार जानवर हैं, खून के प्यासे होते हैं, जिनकी ग़िज़ाई गोश्त होता है, वो भी सुकून व इत्मीनान के साथ इंसानों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। उस वक्त अदल का सही ज़ाहिर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना मैं कुरान मजीद की वो आयतें आपकी खिदमत में पेश करता जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ हैं, कि जिसमें इमाम की हुकूमत, इमाम को इस ज़मीन पर क़याम, इमाम ज़माना की हुकूमत कायम करने का वादा अल्लाह ने किया है। वो लोग जो कमज़ोर कर दिए गए, कमज़ोर नहीं थे, मगर ज़ालिमों ने जुल्म व सितम के ज़रिए इस ज़मीन पर उनको कमज़ोर किया। यकीनन एक दिन हम उनको हुकूमत देंगे, एक दिन उनका क़याम होगा, वो अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे। और ज़ाहिर है कि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त होगा, उनका ज़माना होगा। ये मशी, ये ज़ियारत इमाम हुसैन, ये मुक़द्दिमा है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतज़ार का। हमारे लिए हुक्म है कि हम हर वक्त ताजील ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ करें। रिवायत में है, जो शख्स इमाम के ताजील की दुआ करते हुए, उनकी ज़ियारत की तमन्ना करते हुए, उनकी इमामत के ऊपर यकीन रखते हुए, उनकी नुसरत का अहद करते हुए इस दुनिया से उठेगा,
परवरदिगार आलम उसको ज़ुहूर इमाम के बाद ज़िंदा कराएगा, बहुक्म इलाही ज़िंदा होंगे, इमाम के असहाब में शुमार होगा, इमाम के अंसारों में शुमार होगा, इमाम के ज़ायरों में शुमार होगा, और यकीनन उस वक्त हकीकी दुश्मनान आले मोहम्मद से बदला लिया जाएगा। मेरा वक्त तमाम हो रहा है। इन दुआओं के साथ परवरदिगार आलम इन तमाम ज़ायरों को जो मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ शहरों से अपने वतन को छोड़कर करबला की तरफ रवा दवा है, जिन हाजात को लेकर आ रहे हैं उनको पूरा फरमा। इनमें जो मरीज़ हैं उनको शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा। परवरदिगारा अशरार के शर से इन सब को महफूज फरमा। मेरे माबूद इन ज़ायरों की दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हम सब को दोबारा ज़ियारत पर आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये सआदत इस साल अल्लाह ने मुझे अता की है कि अरबईन के मौके के ऊपर मैं करबला पहुँचा और अब आपसे मुखातब हूँ। मैं भी तालिब दुआ हूँ कि आप सब मेरे हक़ में सेहत व सलामती, ईमान की सलामती, अक़ीदे की सलामती की दुआ फ़रमाएँ, और दुआ फ़रमाए कि ये ज़ियारत आखिरी ज़ियारत न हो, मुतअद्दिद ज़ियारतें ज़िंदगी में अता हों, हज की तौफ़ीक़ अता हो। सामीन किराम, बड़ा शरफ़ है। आप देखें, लोग घरों से निकले हैं, उन्हें नहीं मालूम कहाँ ठहरेंगे, चंद कपड़े थैले में रखे, कांधे पर रखा, चल पड़े। न खाने की फ़िक्र, न पीने की फ़िक्र, न क़याम की फ़िक्र, दिन भर धूप। हम तो होटलों में रह रहे हैं, खाने पीने की फ़िक्र नहीं है, मगर ये बेचारे पूरे दिन धूप के अंदर रहते हैं, रात को जो है शबनम है। आप अंदाज़ा करें, सबक लें सऊदी अरब के हुक्काम, जहां आज तक 40 मिलियन अफराद न हो सके, 4 मिलियन अफराद न हो सके, करबला में 40 मिलियन अफराद इस साल आ रहे हैं। हज महंगे से महंगा हो गया। अपना बजट पूरा करने के लिए जिस कदर हाजियों को लूटा जाता है वो कम है। यहाँ देखो, हमारा सलाम व अहले इराक़ पर, हमारा सलाम व अहले करबलाई पर, जो अपना पूरे साल की मेहनत व कमाई को ज़ायरों के लिए वक़्फ़ कर देते हैं। हर चीज़ मुफ्त है, खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त है। होटलों में कितने लोग रहेंगे? क्या 40 मिलियन होटलों में समाएंगे? क्या इतने मकामात हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई सड़क, कोई गली, कोई कूचा, कोई इलाका खाली नहीं है। और ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। न इनको खाने की कमी, न पीने की कमी, न सोने की कमी। अल्लाह उन तमाम मुंतज़मीन को, मौक़िफ़ कायम करने वालों को सलामत रखे, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा दे, और इमाम हुसैन चैनल को परवरदिगारा दिन दोगनी रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फ़रमाए कि हमारी आवाज़ों को, ज़ायरों की आवाज़ों को पूरी दुनिया तक इस चैनल के ज़रिए पहुँचा रहे हैं। ये ज़बान इंग्लिशी, तुर्की, फ़ारसी, अरबी, उर्दू में इनकी नशरियात हो रही हैं। आप समाअत करें हर ज़बान में, जो जिस ज़बान का मानने वाला है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।